Good morning, students. Welcome to Talent Blazer, India's latest platform to provide all the solution to your UGC net related issues and problems. And this is your teacher and friend in this journey. My name is Gaurav, and we'll start with Unit 6. We have covered Unit 1 previously, and there is something that I want to tell you that, uh, you know, most of you are watching, and even then you are not liking the video. Please do leave a like for the video and do subscribe to the channel. And I do want to talk about Talent Blazer. Talent Blazer briefly. Certainly, there is an app on Play Store. You can download the app, and that will be very helpful in this preparation journey because you can get the mock test and previous year question papers from there for paper 2 and paper 1 also. So that is very crucial and important while preparing for any examination, that you do attempt mock test and practice previous year questions as well. From that you can get an idea upon how the questions are being constructed and framed. So in today's class we'll start with the unit 6, that is business management and HRM. So we'll start with what is management, and certainly it is very important and crucial not only for UGC net aspirants but for everyone, for even for banking examination. Many students uh, while preparing for other banking examination do not know what is management, because management has been a very important subject, and there are many questions that are being asked specifically from this field. So management is very crucial and important. So in today's class we'll cover management. So what is management, right? We all do manage things in our life. Even if you want to clear the examination, you have to manage your timetable, you have to manage your life, you have to allot uh, some amount of time. I think a most amount of time of your day towards study, and that's apply for the company as well. Why? Certainly you need to manage everything because there is a limitation on resources. A company cannot afford everything, right? So there is limitation on resources, so they have to manage things so they can achieve those specific goals, because every organization has specific goals and objectives, and they differ from an organization to an organization. Similarly in this case, you know in while you're studying for your examination, you need to manage your timetable as well. So what is management? Management is the process of planning and organizing the resources and activities of a business to achieve specific goals in the most effective and efficient manner possible. तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है ये? बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? आपको ना प्लान करना पड़ेगा एडवांस में। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे, आप सीधे जाके कहोगे मैं सीधा मॉक टेस्ट दे दूँगा। मैं प्लान ही नहीं करना, दिन में 2 घंटे पढ़ना है। आपको हफ्ते में 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। पूरे हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपने 5 घंटे पढ़ा और फिर एक मॉक टेस्ट दिया। दैट्स बेसिकली प्लानिंग। यू हैव टू प्लान। फिर प्लान करने से सब हो जाता है? नहीं, प्लान करने के बाद यू नीड टू ऑर्गेनाइज कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए मुझे, क्या क्या पढ़ाई के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन सी वीडियोस देखनी है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू एज वेल। तो ऐसे ही होता है मैनेजमेंट में, यू नीड टू मैनेज इट। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंपनी, उनको भी एक फॉलो करना पड़ता है प्रोसेस, जिसमें वो प्लान करते हैं इन एडवांस एंड ऑर्गेनाइज करना होता है क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें चाहिए टू मेक श्योर दैट दे अचीव द ऑर्गेनाइजेशन effectively एंड efficiently। तो effectively उनके हो जाए सही से अचीव एंड efficient, उनका ज़्यादा वेस्टेजेस ना हो। वेस्टेजेस बिकॉज़ नॉट एवरी मैनेजमेंट, नॉट एवरी ऑर्गनाइजेशन कैन अफोर्ड वेस्टेजेस, बिकॉज़ वेस्टेजेस कॉस्ट अ ह्यूज सम। ऐसे लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता। राइट? एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली एट मिनिमल कॉस्ट। तो आप एफिशिएंट कैसे हो? लेट्स सपोज आपने एक्सेल पे काम करना शुरू करा, राइट? तो आप एक्सेल पे काम करना शुरू करोगे तो इनिशियली आपको टाइम लगेगा। आप शॉर्टकट्स की देखोगे कि कैसे समझना है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, क्या शॉर्टकट कीज होती है, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करोगे। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप करते रहोगे। आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर केपेबिलिटी, आप कितनी जल्दी उसको ग्रास्प कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मैनेजमेंट में आप टास्क जो है बहुत जल्दी कर सकते हो और एट मिनिमम कॉस्ट। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप कॉस्ट सेविंग करोगे। सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज, एंड आई होप सबको समझ में आ गया हो कि क्या होता है मैनेजमेंट। एंड ये सबको पता ही है बिकॉज वी डू प्रैक्टिस मैनेजमेंट इन आवर डेली लाइफ। सो पता नहीं कि क्या है, क्या मीनिंग होता है, यही मीनिंग है। यू हैव टू प्लान इन एडवांस और ऑर्गेनाइज करने होते हैं रिसोर्सेज, राइट? सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव टू डू
motivation theories. बहुत important है management motivation theory. This will definitely ask you ना question from in your examination. आता ही आता है इसमें. Motivation theories दो types की होती है. एक होता है कंटेंट थ्योरीज, एक होती है प्रोसेस थ्योरी. तो कंटेंट थ्योरीज भी और बाइफरकेटेड है कि और भी ऑप्शन है. सो मोटिवेशन थ्योरीज आर ऑफ टू टाइप्स, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज. एंड कंटेंट थ्योरीज consist of four theories. First is Maslow need hierarchy theory, सबने पढ़ी है in business study. Second is Herzberg motivation hygiene theory. Third is McClelland's uh, needs theory. And finally L. Derfer's ERG theory. तो ये आपकी चार कंटेंट थ्योरीज है. नाउ प्रोसेस थ्योरीज कौन कौन सी? एक ब्रूम एक्सपेक्टेंसी, एडम इक्विटी, गोल सेटिंग और रीइंफोर्समेंट. ये चारों प्रोसेस थ्योरीज है. और ये जो मैंने पहले चार बोली ये सारी कंटेंट थ्योरीज है. तो ये मोटिवेशन थ्योरीज है. और इनमें से यू डेफिनेटली विल गेट अ क्वेश्चन फॉर श्योर. कोई चांस ही नहीं है कि वो स्किप कर दें मोटिवेशन थ्योरीज. एंड नॉट ओनली, आई एम नॉट सेइंग it is important for only UGC net aspirant. If you are preparing for any banking examination and management does form a part of your syllabus, you will definitely get a question on motivation theories. Management से आता ही आता है, बहुत hot topic है. So firstly we'll start with the motivation theories. So मोटिवेशन पे ना बहुत चीजें इफेक्ट करती है, इंटरनली और एक्सटर्नली. इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल फोर्स, लेट्स सपोज आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप यू विल ग्रो इन योर लाइफ, यू विल earn well, you'll get a status, you'll earn a status in the society. Internally आपको अंदर से ही बहुत इच्छा है इस पर्टिकुलरली एग्जाम को क्लियर करने के लिए. दैट फायर कम्स फ्रॉम विद इन. सो मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी होती है. तो so there are many internal and external variables that affect the motivation to work. Behavioral scientists started to search new facts and techniques for motivation. So basically हुआ क्या, now because we are talking about theories of motivation, तो motivation ना internally और externally होती है. तो behavioral scientists they started to explore कि क्या तरीके हो सकते हैं to motivate your motivation. कैसे टेक्निक्स क्या है, क्या क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व है मोटिवेशन में. सो दीज आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हम कवर करेंगे. फर्स्ट इज मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई. और ये बहुत सिंपल है. विल कवर द मोस्ट ऑफ द थ्योरीज इन टुडेज क्लास. फर्स्ट इज मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई. सेकंड इज हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. थर्ड इज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. सबने 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ी ही पढ़ी है. लास्ट इज मैककेलेंस अचीवमेंट थ्योरी. तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है. नाउ फर्स्टली we'll discuss and start with McGregor theories and X and Y. So, the style adopted by manager in managing his subordinate is basically dependent upon his assumption and human behavior. तो इसमें ये क्या कह रहा है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में जो मैग्रेगर ने बोला कि जो मैनेजर है ना वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे बिहेव करता है उनके साथ, उसकी जो कुछ अजम्पशंस है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जज करता है अपने एम्प्लॉयज को. उसने बोला कि थ्योरी एक्स इज नेगेटिव ट्रेडिशनल एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल, while theory Y is positive, participatory and democratic. तो थ्योरी एक्स क्या है, बहुत नेगेटिव है, ट्रेडिशनल है और ऑटोक्रेटिक स्टाइल की डिमांड करता है, डिमांड उसकी बात करता है. वेयर एज थ्योरी वाई इज पॉजिटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक. तो क्या है थ्योरी एक्स, क्या है थ्योरी वाई? डू वी हैव टू लर्न सम फॉर्मूलाज? नो, ऐसा कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए. कंसेप्ट पता है, यू आर द किंग. That's it. So theory X, this is the traditional theory of human behavior which makes the following assumption. तो theory X में कुछ assumption है, हर theory में कुछ assumptions होते हैं. Firstly theory X में क्या assumption है कि average human being has an inherent dislike of work and will avoid it if he or she can. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी इंसान है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग, उसे पसंद नहीं है काम करना. उसको काम दोगे वो नकारेगा काम करने को कि यार मेरे को नहीं काम करना, पसंद नहीं है काम करना. सो दे हैव इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क, राइट. सेकेंडली, द एम्प्लॉय लैक एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड. उनको एम्बिशन, उनकी करियर में कुछ नहीं है, उनको जो काम करा रहे हो दे रहे हो वो भी वो नहीं करना चाहते. उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि आपको ये टास्क लीड करना है, आपको ये काम लीड करना है, सबमिट करना है इतने टाइम तक, वो भी उन्हें पसंद नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, मन से इच्छा नहीं है उन सब चीज़ों करने की. एंड प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड, इसका क्या मतलब हो कि उन्हें कोई हेल्प कर दे, राइट. उनको ये ना हो कि कोई टास्क दे दिया और वो टास्क करना कैसे है, उन्हें आइडिया नहीं है, तो कोई हेल्प करे, उन्हें डायरेक्ट करे कि ये टास्क कैसे करना है, उन्हें यही पसंद है. और थर्ड थिंग,
वो इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं हम। तो उन्हें बस अपने से मतलब है, दे आर इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन लीड। जैसे मैंने बोला कि उन्हें मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें अपने से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, दैट्स द थिंग। एंड द लास्ट थिंग, दे हैव अ नेचर टू दैट रेजिस्टेंट टू चेंज। उनको जॉब रोटेशन पे मत भेजो, उनको कहीं और ट्रांसफर मत करो, उनको जहाँ पे काम करा रहे और उनको कुछ नया काम भी मत दो, जो काम चल रहा है वो वही काम करना चाहते हैं, उनको नया काम नहीं चाहिए, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। सो दीज आर द फ्यू थ्योरी एक्स अजम्पशंस अंडर मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। तो थ्योरी एक्स में बहुत नेगेटिव बोला गया है कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें उसे काम करना पसंद नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो नकारेगा, उसको डायरेक्ट करना ज़रूरी है, उसको पता नहीं कि क्या करना है और करना ही नहीं चाहता, और वो खुद सेल्फ सेंटर्ड है, उसे अपने गोल्स की ही पड़ी है, उसे नहीं मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, राइट। और उसका ये है कि उसका जो नेचर है वो रेजिस्ट करता है चेंज को, ठीक है। तो दीज आर द मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स की ये असम्पशन है, आई होप क्लियर हो गया हो कि बहुत नेगेटिव प्रोसेस है। तो थ्योरी एक्स जस्ट टॉक्स अबाउट द नेगेटिव, कि क्या नेगेटिव अप्रोच है एक मैनेजर अज्यूम करता है अबाउट द एम्प्लॉय, राइट। सो दिस इज थ्योरी एक्स। नाउ दिस द थ्योरी वाई इज basically opposite of theory x. So let's move to theory y. Theory y क्या है? According to McGregor, theory y is based on the following assumption: work is natural as play or rest provided the conditions are favorable. The average human being does not inherently dislike work. तो इसमें क्या कह रहा है? I hope most of you have watched the movie Three Idiots. In that, particularly, there is a famous dialogue that डोंट रन आफ्टर वर्क, ऐसा आप बेसिकली कहने का मतलब यही था कि उस मूवी में इन थ्री इडियट्स वो बोलते हैं कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, अगर आप वो अच्छे से कर सकते हो जो आपको करना है, लाइक द फरहान का एग्जांपल, ही लव्स टू ही वाज अ गुड फोटोग्राफर एंड ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग। तो द डे ही स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी ही वाज feeling happy about it. वो that work was natural, उसको काम अंदर से अच्छा लग रहा था, that's basically natural as play or rest. So theory y talks about that, and provided the conditions are favorable, condition favorable होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका work environment बहुत toxic हो तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहता, right. Secondly, external control and thrust of punishment are not the only means for bringing about efforts towards organization objectives. तो आप ये धमकियां ना दो कि we'll punish you if you if you're thinking that by punishing the employees you will make sure that your employees are very dedicated towards achieving the organization goals and objectives, that's not going to happen. चीजें चेंज हो रही है, एक्सटर्नल कंट्रोल एक लिमिट तक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उनको पनिश करने लगोगे एम्प्लॉयज को, अगर वो पनिश करोगे सर्टेनली दे वोंट बी एबल टू, they might think that why I'm working here. तो उनका ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव स्टांस रहे, देयर आर अदर थिंग्स टू सॉर्ट थिंग्स आउट, उनको हेल्प करना ज़रूरी है, यू हैव टू लिसन टू योर एम्प्लॉयज एज वेल, राइट। नाउ कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज द रिजल्ट ऑफ द रिवॉर्ड associated with their achievement. So if you are committed to work, if let's suppose I am given a work and I'm committed very much towards my work, and certainly my commitment is being praised and being rewarded, so I'll feel happy, I'll feel grateful that okay, I'm working in an organization जहाँ पे मेरी काम की तारीफ हो रही है और मैं अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ। The average human beings under proper conditions learn not only to accept responsibility but also to seek it. तो अगर आपकी conditions are favorable, तो मैं responsibilities लर्न करना नहीं सीखूंगा, बल्कि उसको लेने के लिए आपके पास आऊंगा कि मेरे को ये प्रोजेक्ट लीड करना है, राइट। सो नॉट ओनली यू विल लर्न how to manage responsibility, but also you want to seek it so that you can grow in your career. So this is theory y, and we have discussed theory x. I hope सबको समझ आ गया होगा theory x and theory y में क्या है, right?